Hello, everybody. How are you doing? I hope you are in good health and high spirits. So, Bacha Party, we are here with another video. So, now we are starting with the poem I Know Why the Caged Bird Sings. This is written by the poet Maya Angelou. So, let us start this poem without any further delay because the board exams are on your head, right? We have to score really good marks. Aim for 80, then only you will get 75 plus. Or might be 80 also, you might be getting, right? 100 out of 100, 100 on 100, right? So come on, let's start. Let's read first about the author, that is Maya Angelou. Okay. हाँ जी. So Maya Angelou की जो ये poem है, I might be wrong with the pronunciation of Angelou because it's different for different people. Like some people say it some way, some people say it the other way. हाँ जी. So sorry. हाँ जी. So Maya Angelou की जो ये poem है, let us begin this. So Maya Angelou is a powerful feminist writer. Okay, she's a feminist writer. She's a powerful writer. She's a female basically of Afro-American ethnicity social group. Means she's an Afro-American, means she's a Negro. Afro-American group से हैं वो, ठीक है, Negro हैं Maya Angelou जी. शी इज़ अ वाइडली एक्लेम्ड ऑथर, उनको बहुत माना जाता है. एंड शी इज़ अ पोएट एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट who worked closely with Martin Luther King Jr. and Malcolm X. इन्होंने ये एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, राइट, पोएट हैं, पावरफुल ऑथर हैं, जिन्होंने काम किया था किंग मार्टिन लूथर जी के साथ, राइट, और मलकॉम टेन जी के साथ. हाँ जी. सो माया एंजेलू हैड एन एक्सट्रीमली ट्रोमैटिक चाइल्डहुड. उनकी बचपन की लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब्ड रही है, ट्रोमैटिक रही है. एंड हर पोएम आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स रिटन इन 1969. कब लिखी गई है पोएम पूछते नहीं जनरली, बट क्या पता भाई बोर्ड का पेपर थोड़ा सा बहुत टफ ट्रिकी आ जाए, फिर तुम लोग कहोगे भैया ट्रिकी आ गया. तो 1969, easy date remember, easy date to remember, tells of her life up to the age of 17. तो जो इसकी poem है I Know Why the Cage Bird Sings, which is written by 1969, it tells us about her life till the age of 17. It is this poem that brought her international acclaim and recognition. इनकी ये poem ने इन्हें public प्रेज, इनको पब्लिक की प्रेज दिलवाई, मतलब पब्लिक ने इनको प्रेज़ किया उनकी इसी पोएम की वजह से. एंड शी गॉट रिकॉग्निशन, लोग उन्हें जानने लगे, उन्हें पब्लिक ने उनकी प्रेज़ की, लोगों के में वो फेमस हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोएम आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स रिटन इन 1969. So the bird in the cage, it's very very important that it is used as a metaphor for the Afro-American, for the Negroes. It is used as a metaphor, the bird in the cage, because they were denied their basic rights of freedom. Like, is a symbol of all African Americans and their fight for freedom, right, and their fight for freedom. सो बेसिकली एक सिंबल है जो केज्ड बर्ड है. इट इज़ अ सिंबल ऑफ द एफ्रो अमेरिकन और उनकी जो लड़ाई थी फ्रीडम के लिए. इट सिम्बलाइजेज द स्ट्रगल ऑफ बीइंग अ ब्लैक ऑथर हुज वर्ड्स आर नॉट हर्ड. इसमें सिम्बलाइज किया गया है स्ट्रगल एक ब्लैक ऑथर होने का जिनके शब्दों को इतना महत्व नहीं दिया जाता, एंड ऑफ वन हु लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, जो कि फ्रीडम की तमन्ना करते हैं. थिंक ऑफ द लाइन्स ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, सपनों ख्वाबों के कबर, nightmares scream, and compare the liberty of the freed bird with that of the shackled, restrained, caged one. So this one are very important lines written for you all. And caged bird is a metaphor for Afro-Americans or black people. They may be physically restricted, but nobody can stop them from singing, right? They can sing, although they are physically restricted. Their wings has been clipped, their feet are tied, but they can sing. Of freedom. A free bird is a metaphor for white Americans and they have complete freedom to do anything of their own will. कुछ भी कर सकते हैं white Americans because they have complete freedom to do. So I know why the caged bird sings. So it is a real life incident. Daffodils भी एक real life incident पे थी, and this is also based on a real life incident. Dreams are entombed, buried, right? Written by Maya
एंजल, पहले माया लिखो फिर एंजल लिखो फिर ओ यू, ठीक है, सिंपल स्पेलिंग्स है, एंगल नहीं लिखना, ANGLE, ANGEL, एंजल जो परी टाइप होती है, ओ यू, राइट, मैसेंजर ऑफ गॉड वाला एंजल, जो अबू बिन आदम में एंजल आई थी वो वाला एंजल लिखना है, राइट। हाँ जी, सो यस, अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड, अभी वो कह रहे हैं कि जो एक फ्री बर्ड है इट लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड, हवा के साथ, हवा के ऊपर वो तैरती है, मतलब हवा में बेसिकली वो फ्लाई करती है, यानी जो वाइट अमेरिकन्स हैं उनको पूरी फ्रीडम है, जैसा चाहें वो वैसा कर सकते हैं, इट जस्ट मीन्स दिस बेसिकली। ओके, सिम्बल्स शोइंग इट इज़ अ फ्री बर्ड, फ्लाइट ऑफ अ फ्री बर्ड को दर्शाया गया है यहाँ पे, दैट इट इज़ फ्री टू डू एनीथिंग, इट लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड, इट इज़ इंपॉर्टेंट लाइन्स, हाँ। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम, फ्लोज टू ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ एयर, जैसे हवा नीचे को आ रही है, हवा नीचे को आ रही है तो फ्री बर्ड भी नीचे को आ रही है, राइट। टिल द करंट एंड्स एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज, और अपनी ऑरेंज सन रेज कैसी होती हैं, ऑरेंज कलर की होती हैं, और उसमें अपने वो विंग्स डिप करती है, यानी कि सनशाइन में वो सनशाइन को एक्सपीरियंस करती है, फ्रीडम है उसके पास, वो बाहर खुले आसमान में घूमती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, मीन्स अ फ्री बर्ड फ्लाइज एज इफ द स्काई बिलोंग टू हिम, जैसे स्काई उसका खुद का हो, ऐसे वो आसमान में बिना कोई बंधन, बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के उड़ती है। these all are of free bird. Okay, this para is about free bird, कि जो free bird है it leaps on the back of the wind, floats downstream till the currents end, and dips his wings in the orange sun rays and dares to claim the sky. But a bird that stalks down his narrow cage, but एक ऐसी bird which stalks down his narrow cage, वो एक पिंजरे में बंद है, जो कि एक तंग पिंजरा है, तंग जेल है, नैरो जेल है, can seldom see through, not often, rarely can see through outside it his bars of rage. पीपल फुल विद एंगर, लोगों में गुस्सा है यार, अगर तुम्हें घरों में बंद कर दे कोई तो तुम्हें गुस्सा तो चढ़ेगा कि हमारी आज़ादी को तुम कैसे छीन रहे हो, दिस इज़ पर्सोनिफाइड, बिकॉज हाउ कैन द बार्स बी ऑफ एंगर ना, बार्स तो लोहे वगैरह के होते हैं, एंगर के कौन से बार्स आ गए, सो दैट्स अ पर्सोनिफाइड बेसिकली, इट्स हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, उसके विंग्स को क्लिप कर दिया गया है एंड उसके पैरों को बांध दिया गया है, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, तो वो अपना गला खोलता है, क्लियर करता है गाने के लिए, ये एफ्रो अमेरिकन्स के लिए है, ठीक है, बिकॉज दे आर बिहाइंड द जेल, सो उनके एक तरह से पैर बंधे ही हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ देयर्स इज कर्टेल्ड, राइट, केज बर्ड की, सो इट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज, कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ एंगर, हिज विंग्स आर क्लिप्ड, मीन्स दे आर बाउंड बाय स्लेवरी, उनको स्लेव्स बनाया गया है, इसलिए उनके विंग्स क्लिप बोले गए हैं कि उनके विंग्स क्लिप क्यों हो गए हैं, बिकॉज दे आर मेड स्लेव्स, एंड हिज फीट्स आर टायर्ड सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए हाईलाइट किया है ये सारे, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट वंस। देन द केज बर्ड सिंग्स विद फियरफुल ट्रिल, अभी जो केज्ड बर्ड है वो एक बहुत ही फियरफुली मतलब बहुत ही डरी हुई आवाज़ में गाता है, ऐसा नहीं कि खुल के गा रहा है अरिजीत सिंह बन के मैं मुसाफिर एंड ऑल, ओके, तो इट्स लाइक बहुत डरी हुई आवाज़ में, क्वेवर, शेकिंग, ट्रैम्बलिंग, cage bird sings with fearful trill of things unknown, means don't know what is what is happening in the world, उसको freedom का नहीं पता, because they are behind the jail, right, of things unknown but long for still freedom, and his tune is heard on the distant hill, for the cage bird sings for freedom, longing for freedom, this is important, that's why I have highlighted, I'm again saying listen carefully, so the cage bird sings with fearful trill, बहुत ही डरी हुई आवाज़ में, shaking voice में, trembling voice में, it sings quavers of things unknown, जिसका उसको कुछ नहीं पता, बिकॉज वो तो बंधा हुआ है ना, स्लेव्स बनाया गया है उनको, तो शेकिंग वॉइस में वो गाता है फ्रीडम के लिए, वो लॉन्ग करता है फ्रीडम की, वो तमन्ना करता है फ्रीडम के लिए, वो उसको फ्रीडम चाहिए भाई, दो उसको, एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, उसकी आवाज़ को दूर हिल तक भी सुना जा सकता है, फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि केज बर्ड आज़ादी का गान गाता है, राइट। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट पोएम है यार, डू इट प्रॉपरली गाइस,
द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज, फ्री बर्ड क्या है वहाँ पे ऑन द अदर साइड, फ्री बर्ड को दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट है। एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज, पीपल हु आर गोइंग टू ट्रेड इन अदर कंट्रीज, वो तो मतलब इतने फ्री हैं कि वो और कंट्रीज़ में जाते हैं ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन द डॉन ब्राइट लॉन, मीन्स ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ दैट फ्री बर्ड हैज़, उसको बताया गया। फैट वॉर्म्स का वैसे मतलब नहीं है कि वाइट अमेरिकन फैट वॉर्म्स खाते हैं, इट्स जस्ट रेफर टू द अपॉर्चुनिटीज़। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। तो इसमें क्या है, इट इज़ फॉर फ्री बर्ड, कि फ्री बर्ड और अनदर, फ्री बर्ड इज़ लाइक वेटिंग फॉर अनदर ब्रीज, और अनदर ब्रीज का सोचता है और अपॉर्चुनिटी की वो भाल में है। एंड ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्रीज, ट्रेड विंड साइन ट्रीज के बीच में से गुजरती हैं, यानी इट लाइक दे आर गोइंग टू अनदर कंट्रीज फॉर ट्रेड फॉर प्रॉफिट। एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन, एंड ऑल द अपॉर्चुनिटीज बेसिकली दैट आर देयर फॉर द फ्री बर्ड, fat worms like it's a food for free bird. So it's like opportunities for the white Americans, and he named the sky his own. But a caged bird stands on the grave of dreams, means his dreams are dead. He cannot even dream. उसके dreams का क्या फ़ायदा when he is caged? His shadow shouts on a nightmare scream, उसको बुरे सपने आते हैं basically. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. This is repetition only. This again is the repetition that the cage bird sings with a fearful trill of things unknown but longs for still, and his tune is heard on the distant hill, for a cage bird sings for freedom. ये तो repetition है, अगर आपको पूछ लें poetic device, so this is repetition. This is the same which we have studied earlier. So this is all about today's video. I hope you understood. If you have any doubt regarding the video, any stanza you didn't understood, any line you have a doubt in it, you can do let me know. So all the best, bacha. Thank you very much for listening me patiently, and best of luck.